the cervix which opens into the vagina is called as a external OS. ठीक है ना. अभी जो एक्सटर्नल जेनाइटालियाज है ये सब तो इंटरनल जेनाइटालियाज है फीमेल में. ये सारे चीजें जो हमने पढ़े वो सब इंटरनल जेनाइटालियाज पढ़े. अब एक्सटर्नली व्हाट वी कैन सी, लेट अस सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. सो व्हेन यू सी अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, it consists of the external genitalia. Just a minute, wait beta. Okay, whatever you want to ask you can ask me in the chat box. ठीक है. So it consists of the external genitalia, consists of the mons pubis. ठीक है. It consists of the vestibule region. Vestibule region is nothing but this whole part is called as a vestibule region. A hymen which is closing the vagina and the clitoris. ठीक है. You can clearly see in the diagram. So mons pubis is the elevated part, is the elevated region where we can see the presence of pubic hair at the time of puberty. Yes, at the time of puberty we can see the presence of pubic hair growth on the mons pubis. So how you will define the mons pubis? It is a fleshy elevated part. ठीक है. Next part which you can see is the वेस्टिब्यूल रीजन. उसके बाद ये पूरा रीजन को हम वेस्टिब्यूल रीजन बोलते हैं. अब ये वेस्टिब्यूल रीजन के अंदर यू कैन सी द अपर मोस्ट फोल्ड विच इज कॉल्ड एज अ लेबिया मेजोरा. यस, labia majora is a fleshy fold of skin. It is a large, fleshy, fatty, hairy, no doubt, outer fold of skin. ठीक है. It has been said that it is homologous to the scrotum. जैसे स्क्रोटम टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है वैसे इसको बोला जाता है कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है. तो इट कैन बी सेड दैट इट इज होमोलोगस टू द स्क्रोटम. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इट डज, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल जेनिटालियाज लाइक वजाइना एनल को ये सराउंड करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है. देन अगेन यू कैन सी दैट labia majora के अंदर you can see a one more fold like skin called as a labia minora. Yes, it is also called as a labia minor. It is a lip like structure. Yes, so labia minora, it is anterior, it is the another part which is present inner to the labia majora. ठीक है. Now you can see over here that both the labia minoras they are being joined at last. एक last में वो दोनों joined होते हैं. ठीक है. And this joining is called as a fourchette. Yes, where both the labia minora they join, that region is called as a fourchette. Fourchettes. ठीक है. Now, the next part which you can see over here, the elevated part which is called as the clitoris. Okay? So, let us see about the clitoris also. Sorry. So, clitoris क्या है? It is highly sensitive part, conical structure, highly sensitive. It has a pair of erectile tissues. Clitoris also have a pair of erectile tissue. So it has been told that it is homologous to the penis. जैसे पेनिस के अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा था वही टाइप का टिश्यूज क्लाइटोरिस में भी होता है. मतलब कॉर्पोरा कैवर्नोसा टाइप का टिश्यूज इसके अंदर भी देखने को मिलता है. Yes, so clitoris has been said that it is homologous to the penis. So it is a highly sensitive organ lying just in front of the urethral opening. So yesterday I've told you about the hymen. Hymen is the part which is covering this vagina. This vagina को ये cover करके रखता है. You can see that ये urethral opening है. Urethral opening is for urination. ये जो urethral opening है, this is for urination, and this is the vagina. This vagina is an opening both for copulation as well as for the child birth. Okay. So as I've told you yesterday, hymen is a partial covering to the vaginal opening. It is torn during the first coitus. Coitus matlab sexual intercourse. As I've told you, it is not always compulsory that it should always be torn during the first coitus.
it can also get broken due to sudden fall. ठीक है, और any physical exercise के वजह से भी it may get torn. ठीक है, very clear. So it has been clearly mentioned that so it is all not always that hymen is not a reliable indicator of the virginity. Very clear. Now next we are going to learn about the accessory glands. अभी accessory glands में see मैंने आपको ये last lecture में ही बताया था. See here, accessory glands में vestibular glands जो है, vestibular glands, ये जो वेस्टिब्यूल है ना, it forms a gland also called as a vestibular gland, which is also called as a bulbourethral gland. ठीक है, ये क्या काम करता है वेस्टिब्यूल? It also releases lubricating fluid. ठीक है, ये भी क्या रिलीज करता है? lubricating fluid रिलीज करता है. इसके लिए इसको कहा जाता है कि it is homologous to the Cooper's gland. ठीक है, तो फीमेल के अंदर हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन सा देखा? एक तो ये वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको आप बार्थोलिन्स ग्लैंड भी बोल सकते हो, एंड इट इज होमोलोगस टू द बल्बोयूरेथ्रल या फिर कोपर्स ग्लैंड ऑफ मेल. काम क्या है? लुब्रिकेटिंग. इट रिलीजेस अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड. द मेन इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड इन फीमेल इज नथिंग बट द मैमरी ग्लैंड. यस, ये मैमरी ग्लैंड्स के वजह से ही वी बिलोंग टू मैमल्स, है ना. नो डाउट फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड्स इज मच मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द मेल्स. नाउ व्हाई इज इट सो? द आंसर यू नो वेरी वेल दैट मैमरी ग्लैंड एक्ट एज अ नरिशिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी. ठीक है, so what exactly is the mammary gland? The very first point about the mammary gland is it is a modified sweat gland. ठीक है, it's a modified sweat gland. What is the function? It releases milk after parturition. क्या काम करता है mammary gland? It releases milk after the parturition. Parturition means normal delivery को parturition बोला जाता है. अच्छा, ये mammary gland at the time of puberty, yes, it increases in size under the influence of estrogen and progesterone. Yes, as I've told you, at the onset of menstrual cycle जिसको हम मेनार्क बोलते हैं, तो ये दो हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, they come into the blood. So because of these two hormones, ये मैमरी ग्लैंड डेवलप होने लगता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम लैक्टोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं या फिर LTH भी बोल सकते हो आप. इसको आप डिटेल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन में पढ़ोगे. सो मैं वापस बता रही हूँ, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन जिसको आप LTH भी बोल सकते हो. यस, LTH को हम प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं. ठीक है, कोई कोई बुक में उसको प्रोलैक्टिन भी बोला जाता है या फिर लैक्टोट्रोफिक हार्मोन भी बोला जाता है. ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये हार्मोन के कारण ही मिल्क सिक्रीशन होता है इन दी ब्रेस्ट रीजन. वेरी क्लियर? यस. So there are pair of mammary glands which contains glandular tissues as well as fat. Now these glandular tissues of each breast has 10 to 20 mammary lobes है, बहुत सारे उसके अंदर lobes हैं. ठीक है, which contain clusters of cells, and these clusters of cells are called as a mammary alveoli. So you can see over here this purple color structures which you can see, these are nothing but this mammary alveoli. Now these cells of this alveoli, they are supposed to secrete the milk. It is stored in the cavities. Cavities को हम lumen भी बोलते हैं of the alveoli. ठीक है. Now when we talk about, this is the internal part. Yes. When we talk about externally, yes, just 1 minute. I just want to go back to that slide. When we talk about externally, here you can see a dark color region surrounding the nipple is called as a areola. And there is a nipple through which the milk ejects out.
Now, no doubt, the nipple does not have just one pore. It has numerous pore. बहुत सारे pores होते हैं nipples के अंदर, through which the milk comes out. ठीक है? And the nipple को surrounding जो area होता है उसको हम areola बोलते हैं. ठीक है? अंदर का अगर हम टीएस स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो इसके अंदर बहुत सारे डक्ट्स हैं, हाँ, लोब्स है, और लोब्स के अंदर ऐसे पाउच के जैसा ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कॉल्ड एज अ मेमोरी एल्वियोलाई. और ये मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर ही क्या स्टोर होता है, या मिल्क बनता है और स्टोर होता है. So the alveoli, they will open into the mammary tubes. Now you can see the diagram over here. All these mammary alveoli, they are opening into a tube like structures called as a mammary tubes. So tube again join to form the duct. आप देख सकते हो ये सारे ट्यूब्स एक जगह ज्वाइन होके क्या बन गए हैं, डक्ट बन गए हैं. तो mammary alveoli opening into mammary tubule, mammary tubule opening into mammary duct. ठीक है? अच्छा, जहां पे डक्ट बन रहा है तो आप देख सकते हो स्वोलन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, स्वोलन स्ट्रक्चर. तो जब भी बायो में कभी भी ऐसा स्वोलन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम हमेशा बोलते हैं एम्प्यूला. ठीक है, ये याद रखो, एम्प्यूला इज अ स्वोलन पार्ट, लाइक द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ एम्प्यूला. So I'm saying that many ducts they join to form the mammary ampulla, which are again connected to the lactiferous duct. ये देखो, अब ये सारे ampulas किसको कनेक्ट हो गए, lactiferous duct को कनेक्ट हो गए, through which milk is sucked out or ejected out. Is that very clear? You can see the sequence over here. So पहले alveoli, फिर tubule, फिर duct, फिर ampulla और फिर lactiferous duct. Just go through. Again, the diagram is important, as you know that all the diagrams are important. So exam में पूछा जा सकता है the flow of this thing, milk. Again, I am repeating once again about the mammary gland. So what is mammary gland? First of all, it is a modified sweat gland. ठीक है? What is the function of mammary gland? To release the milk and to feed the young one. कभी होता है development of breast at the time of puberty. किसके वजह से होता है? Because of estrogen and progesterone. मिल्क किसके वजह से फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एज द LTH, जिसको मैंने बताया लैक्टोट्रोफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से मिल्क सिक्रीशन होता है. ठीक है? अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो मेमोरी ग्लैंड है इट कंसिस्ट ऑफ अ निपल, और निपल के आजू बाजू में देयर इज अ डार्क ब्राउन कलर सर्कुलर एरिया कॉल्ड एज अ एरियोला. फिर इंटरनली जब हमने देखा, हाँ, तो हमने क्या देखा कि इट कंटेन्स मेनी ऑफ दी फैटी कनेक्टिव टिश्यू एंड मेनी लैक्टिफरस ग्लैंड्स हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर. सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ फैट एज वेल एज ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर फैटी कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है? कितने ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं? अबाउट 15 to 20 इरेगुलर मैमरी लोब्स हैं, जिसके अंदर मैमरी एल्वियोलाइज है. ठीक है? अच्छा, ये एल्वियोलाइज ही है जो कि मिल्क सिक्रीट और स्टोर करते हैं. फिर हमने उसका फ्लो देखा कि कैसे ये फ्लो होता है. तो ये जो एल्वियोला है वो ओपन होगा मैमरी ट्यूब में, मैमरी ट्यूब होगा मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट ओपन होगा मैमरी एम्प्यूला में, एम्प्यूला विल ओपन इनटू द लैक्टिफरस डक्ट एंड थ्रू व्हिच द मिल्क विल बी इजेक्टेड आउट. वेरी क्लियर? समझ में आ गया है? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या? यस और नो तो बोलो. नो. अच्छा, चलो ठीक है. सो वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड नाउ. सो अगेन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. ठीक है?
each and every part is very, very important. So let me check your graphs. What should be the answer? Ovulation is what should be the answer? Say fast. Unmute yourself and tell me the answer fast. Release of ovum from ovary. Yes, so answer is D. It is a release of ovum or the egg from the ovary. Yes, next. What it is? Myometry. Okay, very good. Fast. Yes, tell me which is the highly sensitive part of. No, it is clitoris. Clitoris. Yes, it is clitoris. Correct. Accessory duct का कौन सा part नहीं है? Which is not a part of accessory duct of female reproductive system. Yes, tell me. Graphian follicle. Yes, Graphian follicle. Correct. Mammary ampulla. Mammary ampulla. Very good. Okay, so as we have talked about the breast, let me tell you something about the breast cancer also. You must have heard that this breast cancer has become very, very common today. Okay, so we know that the cancer का मतलब क्या है? It is a what? Uncontrolled growth of cell, है ना? तो जब ये breast में होता है, तो there is a lump formation or a tumor formation. ठीक है? So this can be detected by a test called as a mammogram या फिर mammography भी बोलते हैं उसको. ठीक है? Mammography से it's a test or a detection method जिससे हम ये breast cancer को detect कर सकते हैं. और भी अलग अलग तरीके हैं. MRI करके भी कर सकते हैं, बायोप्सी से भी या फिर ब्लड टेस्ट से भी हम जान सकते हैं. उसका ट्रीटमेंट क्या है? हमेशा मैमोग्राफी है तो उसका ठीक करने का तरीका हमेशा प्लास्टी होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैमोप्लास्टी. या फिर जैसे अदर कैंसर्स को ठीक किया जाता है जैसे कि रेडिएशन, केमोथेरेपी या फिर लंपेक्टोमी. लंपेक्टोमी मींस लंप को कट करके निकाल देना. वेरी क्लियर? ठीक है. There is one more thing which has been given. Just 1 minute. I just wanted to share the textbook with you all. So that textbook का कोई भी चीज रह नहीं जाना चाहिए. So just 1 minute. So ये सारी चीजें हमारा पढ़ा के हो गया. ये ग्रेफाइन फॉलिकल मैं अभी आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ और डिटेल में. Yes, this part I was talking about. Weaning. Yes, weaning का मतलब क्या है? When mother's milk is replaced by solid food, this is called as a weaning. ठीक है. अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? The next topic which we are going to learn is about the gametogenesis. उसके बाद मैं menstrual cycle आपको पढ़ाऊंगी. So again I will come back to the PPT once again. Wait. So we are the next topic which we are going to learn is the gametogenesis. ठीक है. उसके बाद I will teach you about the menstrual cycle in detail. So gametogenesis का मतलब क्या होता है बेटा? Formation. So gametogenesis का मतलब है gametes का formation. ठीक है. फिर वो egg हो या फिर sperm हो. हाँ, तो that is called as a gametogenesis. So it is a formation of gametes in the gonads. Spermatogenesis मतलब sperm का formation. oogenesis मतलब egg का formation. So spermatogenesis and oogenesis is the topic which we are going to learn now.
इसका ऑलरेडी सम ऑफ द पार्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is a process of formation of a sperm. sperm को spermatozoa भी बोला जाता है. कहाँ पर? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. यस, मैंने आपको जब भी पढ़ाया था टेस्टिस, टीयर्स ऑफ टेस्टिस, उस वक्त ही मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, बाजू बाजू में सर्टोरी सेल्स होते हैं. डू यू रिमेम्बर ऑल दैट थिंग? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वी कैन सी जर्माइनल एपिथेलियम, और जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर वी कैन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म. हाँ, डू यू रिमेम्बर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म? याद है किसी को वो कौन सा फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे? जर्माइनल एपिथेलियम के बाद फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे? एनीबॉडी रिमेम्बरिंग? यस, आई एम गिविंग यू टाइम. किसी को याद है? हाँ बोलो. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पहले भी आता है, बट गुड ट्राई, आपने ट्राई तो भी किया. और कोई? स्पर्मेटोगोनियस. हाँ, यस यस, बोलो बोलो. चलो ठीक है, मैं ही आपको बोल देती हूँ. बेटा ऐसे भूलते जाओगे तो फिर अच्छा नहीं है. ठीक है, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सब चीजें रट्टा होनी चाहिए. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाज लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम. जर्माइनल एपिथेलियम में से ही स्पर्म्स तैयार होता है. कैसे तैयार होता है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स है. सबसे पहला जर्माइनल एपिथेलियम के बाद फर्स्ट सेल को हम बोलते प्रीमोर्डियल सेल. प्रीमोर्डियल सेल के बाद आता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटिड, और लास्ट में बनता है स्पर्मेटोजोआ. तो 6 स्टेजेस काउंट करके आपको बताना है. जर्माइनल एपिथेलियम के बाद प्रीमोर्डियल सेल, फिर स्पर्मेटोगोनिया, पहले गोनिया आएगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और फिर लास्ट में आएगा स्पर्मेटोजोआ. तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का जो नाम है सीक्वेंस में प्लीज याद रखो. ठीक है, सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहले स्पर्मेटिड फॉर्म होता है, और फिर ये स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. दोनों में देखो कंफ्यूज मत हो, बहुत हर बार ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. जस्ट 1 मिनट है बेटा, 1 मिनट, जस्ट आई एम कमिंग इन 1 मिनट. ओके, सो सब बहुत सारे बच्चे ये सब चीजों में कंफ्यूज होते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है प्रीमोर्डियल सेल से स्पर्मेटिड तक का जो स्टेजेस है, दैट इज ये दोनों को मिला के स्पर्मेटोजेनेसिस. पर स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. सो यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर, स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूसेस स्पर्मेटिड. ठीक है, और जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. प्लीज इस चीजों को क्लियर करके रखो. Next, let us see how it has been done. Now here the chromosome number also matters a lot. ठीक है, now here you can see that this is the testes, this is the TS of testes, this circle round structures are the seminiferous tubule जिसके अंदर sperm का development हो रहा है. तो जर्माइनल एपिथेलियम से पहला ये देखो, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, प्लीज कर्सर को देखो, स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है,
तो पहले क्या होगा, माइटोसिस हो रहा है, फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, तो स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगेन द क्रोमोसोम नंबर विल बी 2n, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में है। फिर यू नो दैट जब भी मियोसिस होता है क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो पहला मियोसिस होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। आप देख सकते हो, आप ये 2n से n पे आ गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वापस अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। एज यू हैव लर्न इन योर 11th स्टैंडर्ड दैट मियोसिस इज मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2, याद है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों को मिला के मियोसिस हम बोलते हैं। तो पहले मियोसिस 1 करेगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर मियोसिस 2 करेगा तब स्पर्मेटिड्स बनाएगा। अगेन अभी क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, n हो गए। अब ये जो स्पर्मेटिड है, अब देखो यहाँ पे ये वाला ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्पर्मेटिड बना है ना, इसके पास न टेल है, हाँ, न ही मिडिल पीस है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो स्पर्मेटिड कंडीशन में आने के बाद जब स्पर्म को टेल मिलता है, जब स्पर्म को ये मिडिल पीस मिलता है, तब जाकर वो स्पर्म बनता है। तो इन दोनों का जो कन्वर्शन है फ्रॉम टेललेस स्पर्म टू द टेल्ड स्पर्म, इसको हम बोलेंगे स्पर्म फॉर्मेशन या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब मैं ये जो स्टेजेस है इसको मैं 3 फेज में डिवाइड करती हूँ, एज दी मैच्यूरेशन फेज, सॉरी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड दी मैच्यूरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। यस, माइटोसिस हो रहा है मतलब कि क्या बन रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है। यस, ये जो जर्माइनल एपिथेलियम था उससे जब ये स्पर्मेटोगोनियम बन रहा है, वो कंडीशन को मैं क्या बोलूंगी, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना है वो उसका साइज बढ़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां से यहाँ का जो कंडीशन है इसको मैं एक नाम दूंगी एज ग्रोथ फेज। इसके पहले का फेज को मैंने क्या नाम दिया था, यहाँ वाला फेज को क्या नाम दिया था, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, सिर्फ जो जर्माइनल एपिथेलियम है वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। अच्छा, जब ये स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, मतलब ये बड़ा हो गया, अभी थोड़ा ग्रो हो गया, ये स्टेज को मैं बोलूंगी ग्रोथ फेज। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके पूरा स्पर्मेटोजोआ तक का जो सफर है इसको मैं पूरा बोलूंगी मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, तो मैंने कितने फेज में डिवाइड कर दिया स्पर्मेटोजेनेसिस को, 3 फेज में डिवाइड कर दिया। पहला आया मल्टीप्लिकेशन फेज जिसके कारण स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर आया ग्रोथ फेज जिसके कारण प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और तीसरा आया मैच्यूरेशन फेज जिसके कारण प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक स्पर्म बन गया। वेरी क्लियर, इतना क्लियर है? सो 3 phases ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड द मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो इन दोनों के बीच का कंडीशन, कि कैसे ये जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर। तो पहले स्पर्मेटिड का आप ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दिस स्पर्मेटिड इज नॉन मोटाइल। यस, अगर ये नॉन मोटाइल है तो ये नॉन फंक्शनल है। यस, अब इसको कन्वर्शन करवाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसके अंदर कुछ कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर वो स्पर्म बनेगा, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो लेट अस सी कि क्या क्या चेंजेस होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्पर्मेटिड है इसके ऊपर हेड अटैच हो जाता है, हेड अटैच हो जाता है, यू कैन सी ओवर हियर, हाँ, हेड अटैच हो जाएगा। यस, जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। यस, स्पर्म के ऊपर हेड अटैच हो जाएगा जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। वेरी क्लियर, यू कैन सी द हेड इज अटैचिंग। और क्या अटैच हो रहा है, मिडिल पीस लग रहा है इसके अंदर, मिडिल पीस में आता है सेंट्रियोल्स, प्राइमरी एंड डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स आ जाएंगे।
और क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा मिडिल पीस में, यस। और क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, टेल, यस। सो टेल आ जाएगा, यस। तो ये इतने 4 चीजें बनते हैं। ये स्पर्मेटिड में हेड अटैच होगा जिसको हम एक्रोसोम बोलेंगे, मिडिल पीस आ जाएगा जिसके अंदर सेंट्रियोल्स आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा और टेल फॉर्म हो जाएगा। वेरी क्लियर, तब जाकर स्पर्म तैयार होगा। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस, इज दैट वेरी क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस सबको क्लियर है, यस और नो बोलो। Yes, ma'am. Now just have a look over here. So primary spermatocytes, secondary spermatocytes में हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दिखते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 स्पर्मेटिड्स दिखते हैं। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। Thus, a primary spermatocyte has a 4 spermatids and 4 sperm. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 4 स्पर्म फॉर्म होता है। अच्छा, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म के पास हेड becomes embedded in the Sertoli cells. Then they are released from the seminiferous tubule. It is called as a spermiation. ठीक है, वेरी क्लियर। ये देखो, ये सब सर्टोली सेल्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पर्म्स कैसे अटैच्ड होते हैं, फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम हेड टू टेल दे आर बीन अटैच्ड टू द सर्टोली सेल्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द नर्स सेल, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द नर्स सेल। अगेन यू कैन हैव दिस लुक कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये ऑरेंज कलर से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं, 4, ठीक है। So this is what has been given over here. One primary spermatocyte give rise to 4 spermatids or 4 sperms. And they are attached to the Sertoli cells from head to tail. So let us talk about which are the hormones responsible for spermatogenesis. So hypothalamus is a part of our brain, ठीक है, जहाँ पे अपना pituitary gland present है. Pituitary gland is the master gland. So hypothalamus अपने pituitary male के pituitary gland को what to say, it will stimulate and it will release 2 gonadotropin hormones as LH and FSH. LH के वजह से it will act on the Leydig cell, जिसके वजह से secretion of androgens होगा और it will stimulate the spermatogenesis. वैसे FSH जो हार्मोन है, it will act on the Sertoli cell and it will stimulate the secretion of factors for spermiogenesis. एक spermatogenesis है, एक spermiogenesis है. FSH से spermiogenesis होता है और LH से spermatogenesis होता है. लेडिक सेल से कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर संभालता है इन दी मेल्स। Now let us learn about the structure of sperm now. So you can see in the diagram very clearly that it is a motile, microscopic, elongated cell. It is motile, microscopic and elongated cell. Now you can see very clearly that it is divided into 3 regions. है ना? कौन-कौन से regions है? Just have a look. It is divided into head, middle piece and the tail. Head, middle piece and the tail. चलो let us see कि head में क्या-क्या regions present है. So head कैसा है, oval in shape है. कैसा है head, oval in shape. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस. हेप्लॉइड मींस हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम का न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, जिसको हम बोलेंगे एक्रोसोम.
ये एक्रोसोम किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी. सो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड एज इन बिटवीन क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. How is acrosome formed? So acrosome is formed from the Golgi bodies. Next important question for the board exam. What does this acrosome contain? So this acrosome contain a enzyme called as hydrolytic enzyme. Please note down. It contains a hydrolytic enzyme. Okay. Called as, what is the name of that hydrolytic enzyme? The name of the hydrolytic enzyme is hyaluronidase enzyme. Hyaluronidase enzyme. With that, it also contains some enzyme called as zonalysin. ठीक है, ये काम क्या है इसका मैं जब आपको एग एक्सप्लेन करूंगी तभी बताऊंगी. जो एग का कवरिंग है ना, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम काम करता है. ठीक है. सो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं. कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम. उसके साथ साथ एक प्रोटीन वाला भी एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है जोनालाइसिन. तो दो एंजाइम प्रेजेंट है एक्रोसोम के अंदर. ठीक है इतना. Yes, again I am repeating, the sperm is what? It is male gamete, it is motile, it is elongated cell, it is divided into head, middle piece and tail. Head has a nucleus. न्यूक्लियस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्रोसोम. एक्रोसोम के अंदर दो टाइप के एंजाइम है. एक है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम. दूसरा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है जोनालाइसिन. ये दोनों भी एंजाइम जो है वो ओवम को ब्रेक करने में मदद करते हैं. ओवम के अलग अलग लेयर को ब्रेक करने में मदद करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक की. यस, नेक क्या है? बहुत ही छोटा सा रीजन है, वेरी शॉर्ट रीजन, जिसके अंदर हमें सेंट्रियोल्स देखने को मिलता है. यस, अब ये नेक में हमें दो सेंट्रियोल देखने के लिए मिलेगा. एक ऊपर की तरफ जो सेंट्रियोल है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक नीचे की तरफ भी सेंट्रियोल होता है जिसको हम बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल. सो दो सेंट्रियोल हमें देखने को मिलता है नेक रीजन में. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो ऊपर की तरफ, डिस्टल सेंट्रियोल जो नीचे की तरफ. ठीक है. फिर आता है नंबर मिडिल पीस का. मिडिल पीस में आप देख सकते हो कि you can see a spirally arranged or spirally coiled mitochondria we can see in the middle piece. ऐसा गोल गोल arranged है mitochondria. Yes, ये जो arrangement है in the spiral form इसको हम बोलते हैं nebenkan. The spirally arranged mitochondria is called as a nebenkan. What is the function of mitochondria? We know that mitochondria is a powerhouse of the cell. So it will produce energy which will help the sperm to move. Okay. Next, when we talk about the tail you can see that it is long, it is slender, it is tapering. ठीक है. कैसे बनता है? एक्सियल फिलामेंट से बनता है. ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसका ही लास्ट पार्ट यहाँ पे ये बनता है. सो इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल फिलामेंट फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल. ये जो नीचे वाला डिस्टल सेंट्रियोल है ना, उसका ही लास्ट पार्ट से ये टेल फॉर्म हो रहा है. यू कैन सी दैट ये ऊपर पूरा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये सेल है ना, ये एक टाइप का सेल है, तो सेल के ऊपर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही. तो ये अंदर का ये जो टेल है, इट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये लास्ट पार्ट आप देख सकते हो टेल का जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड एज द एंड पीस. द पार्ट विदाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ एंड पीस. वेरी क्लियर. ठीक है. अगेन यू कैन सी द साइज ओवर हियर. अ मैच्योर स्पर्म इज अबाउट दिस मच लॉन्ग. It is covered by, as it is a cell, so it is covered by a plasma membrane. It has three regions: head, middle piece and the tail. ठीक है. How many turns of mitochondria we can see? There are about 10 to 14 spiral turns of mitochondria. 10 to 14 spiral turns of mitochondria we can see over here in the middle piece.
So just have a look over here. Whatever I explained you, it has been given in the screen. हेड में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है. इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स है. लाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग एंजाइम्स. ठीक है. बिहाइंड द हेड इज अ नेक. मिडिल पेज, it is made up of axial filament surrounded by mitochondria and cytoplasm. It is producing energy. Tail, it is consisting of a central axial filament, okay, which will help the sperm to move in the female genital tract. The last part, which is not surrounded by the plasma membrane, is called as the end piece. So a human male ejaculates about, so this is the movement of the sperm. You can see, human male ejaculates about 200 to 300 millions of sperm during a coitus. A normal fertility, at least 60% sperm must have normal shape and size, and 40% of them shows vigorous motility. मतलब बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हैं. आप ये वीडियो में भी देख सकते हो कि कुछ स्पर्म्स जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं. तो जो सबसे पहले वजाइनल ट्रैक्ट में जाता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. वेरी क्लियर? यस, ऑल ऑफ यू समझ में आया आपको इतना? सो अगेन मैं आज आपको स्पर्मेटोजेनेसिस तक ही पढ़ाऊंगी. oogenesis आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा. इज द टाइम? 1 मिनट है, जस्ट 10 मिनट्स आर देयर ना, हो जाएगा. रुको, ये क्लियर है ना सबको? स्पर्मेटोजेनेसिस ना. oogenesis, oogenesis कहां पर होता है? एग का फॉर्मेशन किधर होता है? ये किस चीज का डायग्राम है? ओवरी का डायग्राम है ना. हियर वी कैन सी द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्स, है ना. प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा? सेकेंड प्राइमरी oocyte. फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte. फिर क्या बनेगा? ये क्या बन रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल. यस, ये एक एग है. ये जो ग्रेफियन फॉलिकल टूटा है और टूटने के बाद ये एक सिंगल एग है. ये एक सिंगल एग है जो रिलीज हो रहा है. अब ये जो मैंने क्या बताया था, ये जो खाली ग्रेफाइन फॉलिकल है ये किस में बदल जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा. फिर थोड़े दिन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकैन में बदल जाएगा. ठीक है. तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो फॉलिकुलर है, इसके अंदर ये पिंक कलर वाला ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट इज द एग. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ oogenesis. So it is a formation and maturation of the egg. कहां पर होता है? It takes place inside the Graafian follicle. This is the Graafian follicle. ठीक है. मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी बताया था, oogenesis is initiated in the embryonic stage when millions of egg oogonias are formed within the each ovary. ठीक है. No more oogonia are formed and added after the birth. Yes, जब बच्ची माँ के वूम में रहती तभी उसके पास 200 मिलियंस ऑफ ooगोनियाज होते हैं. फिर वो बर्थ के टाइम पे मिलियंस में हो जाते हैं. फिर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो 40,000 तक हो जाते हैं. पर आफ्टर बर्थ कोई एग भी ऐड नहीं होता है. ooगोनियाज आर नॉट बीन एड. oogonia just multiply to form primary oocyte. Yes, they enter into the prophase 1 of the meiosis and get temporarily arrested at that stage. Now this point is very 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 important. I will teach you what is this being given over here. Just wait. Now each primary oocyte gets surrounded. Now this is the primary oocyte. It is getting surrounded by layers of granulosa cells to form a primary follicle. Yes. Now a large number of primary follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, as I've told you yesterday,
यहाँ पे तो ज्यादा दिया है, बट ओनली 40,000 follicles are left in each ovaries. So at the time of puberty, 40,000, only 60,000 are left in each. 60,000 बोला, पर मैंने आपको कल 40,000 बताया था. In your textbook, it has been given as 40,000 eggs are been left in each ovaries. जिसमें ये 40,000 में से ही एक एक एग हर महीने ओव्यूलेशन होता है उसका. तो यू कैन सी द डेवलपमेंट नाउ. देखो, प्राइमरी फॉलिकल जिसके आजू बाजू ग्रेन्युलोसा सेल है, ये प्राइमरी oocyte है. अब देखो, अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है, अगेन वो थोड़ा डेवलप हो गया, जिसको हम नाम दे रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल या सेकेंडरी oocyte भी आप बोल सकते हो, उसको सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो. अब आप देख सकते हो कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल था, ये बीच में जो है ये एग है. यस, ये ग्रेन्युलोसा सेल है. यस, उसके एग के आजू बाजू में जो रेड कलर का कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज अ जोना पेलेसुडा, और बाहर में थीका सेल्स हैं. अगेन जब ये टर्शरी फॉलिकल बनेगा, तो ये जो एग जो सेंटर में था ना, अब ये एक कोने में आ जाएगा. यस, ये एक कोने में आ गया है एग. वेरी क्लियर. नाउ ये कोने में आने की वजह से यहाँ पे कैविटी बन गई है. ये कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम. हाँ, ये कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम, जिसके अंदर भरा होगा एंट्रल फ्लूइड. और अच्छी तरह से समझने के लिए, दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. देखो, ये एग है, यस, जिसको हम ओवम बोल रहे हैं, जो एक कोने में है. हाँ, ये कोने में होने की वजह से यहाँ पे कैविटी बन रही है, जिसको हम बोलेंगे एंट्रम. एंट्रम के आजू बाजू में या फिर एग के आजू बाजू में आप देख सकते हो बहुत सारे येलो येलो कलर के सेल्स दिख रहे हैं, जिसको हम नाम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल. ठीक है. यस, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेन्युलोसा सेल. नाउ अगेन ये ग्रेफियन फॉलिकल का दो लेयर है. ऊपर का लेयर को हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और अंदर के लेयर को हम बोलेंगे थीका इंटरना. ये जो एग है, इसके इस दोनों के बीच में, ग्रेन्युलोसा सेल और एग के बीच में एक पूरा एक ऐसा झुंड है सेल का, पूरा एक बंच है सेल का, जिसको हम बोलेंगे क्यूम्यूलस oophorus. यस, वेरी क्लियर. तो ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूम्यूलस oophorus. ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन कौन से आपने ग्रेफियन फॉलिकल में स्ट्रक्चर पढ़ा. ग्रेफियन फॉलिकल में आपने पहले बताया कि इट इज हैविंग टू लेयर, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. थीका इंटरना ही है जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है. यस, थीका इंटरना के अंदर आपने क्या देखा, यू हैव सीन द ग्रेन्युलोसा सेल, या फिर आप बोल सकते हो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, है ना, पूरा एक लेयर है ना. तो यू कैन से दैट इट इज अ मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. Membrana granulosa, you can again say that it is differentiated into discus, progeria and corona radiata. Yes, ये ऊपर का कोरोना रेडिएटा है, और ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ पार्ट है इस कॉल्ड एज अ डिस्कस प्रोलीगैरस. अच्छा, प्रोलीगैरस और कोरोना रेडिएटा के बाहर भी एक पूरा ढीग है सेल्स का, जिसको हम बोलेंगे क्यूम्यूलस oophorus. उसके अलावा हमें एक कैविटी नजर आ रही है, जिसको हम बोलेंगे एंट्रम. और ये एंट्रम ऐसा खाली नहीं है, इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, जिसको हम बोल सकते हैं एंट्रल फ्लूइड, या फिर आप इसको लिकर फॉलिक्यूलर भी बोल सकते हो. लिकर का मतलब होता है फ्लूइड, सो आप इसको लिकर फॉलिक्यूलाए भी बोल सकते हो. ठीक है. इज दैट वेरी क्लियर. तो मैं आज आपको इतना ही एक्सप्लेन करूंगी टिल द ग्रेफियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर होता है एग, और एग के ऊपर के कवरिंग को हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, और उसके अंदर होता है जोना पेलेसुडा. यस, कोरोना रेडिएटा के अंदर का ये जो ब्लैक कलर का लाइनिंग है ना, उसको हम बोलेंगे जोना पेलेसुडा. ये तो हो गया एग की बात. पर एग किसके अंदर कवर्ड है, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर. एग बीच में है क्या, नहीं, एग एक कोने में है. तो जहां पे वो कोने में, वहां पे बहुत सारे सेल्स है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलस oophorus.
क्यूमुलस oophorus और कोरोना रेडिएटा के बीच में वी कैन सी अ डिस्कस प्रोलीगेरस। ठीक है, फिर हमने क्या बताया, क्योंकि ये एग एक कोने में है तो यहाँ पे कैविटी बनती है जिसको हम बोलेंगे एंट्रम। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल का जो थीका एक्सटर्ना है और जो थीका इंटरना है, थीका इंटरना इज द वन विच इज सिक्रेटिंग द एस्ट्रोजन हार्मोन। वेरी क्लियर? Yes, all of you clear है ना इतना? Anybody is having any doubt? Please ask me now itself. Any doubt? हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा।